Hello and welcome back. Myself Imran Ahmad, working as a assistant professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you all in the subject elements of company law. Today's our topic is distinction between private limited company and public limited company. So, what are the key differences of private limited company and public limited company? We will discuss in this video. So, let's start. Public limited company versus private limited company. So first we will discuss about what is mean by private and what is mean by public company. A private company is closely held one and requires at least two or more persons for its formation. So for the formation of private company, two or more persons are required. On the other hand, public company is owned and traded publicly. It requires 7 or more person for its setup. So public limited company के लिए minimum members requirement is 7 or more. So private में minimum 2 members चाहिए for the formation. Public company के formation के लिए minimum 7 members are required. There are vast differences between private limited and public limited company. A company is an artificial person that come into existence through a legal process, that is incorporation. तो company क्या है? It is an artificial person जो कि existence में आती है, which comes into existence through a legal process. कुछ legal process की through जो है तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी. आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. ओके, सो इट्स फीचर्स. तो कंपनी के फीचर्स में क्या है, हमने इसके पहले वीडियो में फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है. अभी फटाफट हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं. सो इट्स फीचर्स: सेपरेट लीगल एंटिटी जो हमने पढ़ा है, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारी के सारे फीचर्स हम देख चुके हैं. कॉमन सील, कैन sue and be sued in its own name. Basically there are two types of companies, that is private company, private limited company, and public company, public limited company. So in this video we will discuss about the differences between private company and public limited company. Definition of public limited company. So definition पहले हम देख लेते हैं क्या है public company के. A public limited company or PLC is a joint stock company formed and registered under the Indian Companies Act 2013 or may other previous act. ठीक है. There is no defined limit on the number of members the company can have. तो number of members के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी. मिनिमम 7 रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होगी. ऑल्सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के लिए भी पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. The company can invite the public for the subscription of share debentures, and that is why the term public limited company gets added to its name. ठीक है. तो पब्लिक कंपनी जो है तो क्या कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द पब्लिक definition of public limited company. Now let's discuss about the definition of private company. What is mean by private company? A private limited company is a joint stock company incorporated under Indian Companies Act or any other previous act. The maximum number of member is 200. ठीक है. maximum number of member जो है तो 200 है और minimum 2, excluding the current employees and ex-employees who were the member during their employment or continues to be the members after the termination of employment in the company. So minimum 2 members are required for the formation of private company और maximum जो है तो 200 है. Before the introduction of the Act 2013 maximum number जो था private limited company में वो कितनी थी, लिमिट 50, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 200. तो मिनिमम नंबर
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है तो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ private company. The company restricts the transfer of shares and prohibits the invitation to the public. Transferability of share जो है तो प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस है और इट प्रोहिबिट्स द इनविटेशन टू द पब्लिक, और वो मना करती है, प्रोहिबिट करती है इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और डिबेंचर. शेयर और डिबेंचर को पब्लिक में हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर. इट यूजेस द टर्म प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम. कोई भी कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी, उसके आखिर में उसे क्या लिखना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. से फॉर एग्जांपल ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. Okay, so this is the definition of public limited company and private limited company. Let's start the differences of public company and private company. So let's start. First we will discuss about the basis of comparison public company and private company. Here first we will discuss about the meaning. What is mean by public company? Public company is a company which is owned and traded publicly. Public company क्या है? Which is owned and traded publicly. Publicly जो है तो वो ट्रेड करती है, ठीक है, that will be called as a public company. Private company क्या है? Private company is a company which is owned and traded privately. ये जो है तो यहाँ पर क्या है? प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली ट्रेड करेगी तो वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, और जो कंपनी पब्लिकली ट्रेड करेगी वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. सो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया, मिनिमम नंबर पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रहेगी मैक्सिमम नंबर की मेंबर्स की, और प्राइवेट में 200 होना चाहिए. ठीक है. मिनिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स शुड बी देयर इन द पब्लिक कंपनी, एंड फॉर द प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड. ओके. सफिक्स, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी अगर है ए लिमिटेड, यानी कि ये पब्लिक कंपनी है, ए कंपनी का नाम हो गया, लिमिटेड सिर्फ आगे उसके लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पब्लिक कंपनी. लिमिटेड सिर्फ लगाना चाहिए, लगाएगी तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहेगी. ठीक है. और प्राइवेट कंपनी है तो ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या लिखना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड पूरा. तो प्राइवेट लिमिटेड अगर हम लिखते हैं ए प्राइवेट लिमिटेड तो वो प्राइवेट कंपनी रहेगी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं? ए लिमिटेड कंपनी. तो लिमिटेड सिर्फ इंक्लूड अगर करते हैं तो पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड पूरा लिखते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी. ठीक है. इट स्टार्ट ऑफ बिजनेस after receiving certificate of incorporation, and certificate of commencement of business. दोनों सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ commencement of business for to start the business in पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तब ही जो है तो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी. आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी को जैसे ही मिलता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अंडरस्टूड. स्टैट्यूटरी मीटिंग, पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग लेना कंपलसरी है. ठीक है. सो वंस इन द लाइफ ऑफ द कंपनी, पब्लिक कंपनी
पब्लिक कंपनी की जिंदगी में कम से कम एक स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है तो लेना कंपलसरी है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में ये ऑप्शनल है। कंपनी जो है तो प्राइवेट कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग ले ना ले ऑप्शनल है, ठीक है। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है। प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पब्लिक कंपनी में कंपलसरी है और प्राइवेट कंपनी में नॉट रिक्वायर्ड। प्रोस्पेक्टस इशू करना प्राइवेट कंपनी में ऑब्लिगेटरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ठीक है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउड, पब्लिक जो है तो पब्लिक कैन सब्सक्राइब द शेयर्स इन द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में नॉट अलाउड, पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है तो नॉट अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, किसमें, पब्लिक कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में है क्या है, नॉट अलाउड, पब्लिक सब्सक्रिप्शन नॉट अलाउड। कोरम एट एनुअल जनरल मीटिंग, कोरम कितना होना चाहिए, 5 मेंबर मस्ट प्रेजेंट इन द पर्सन। पब्लिक कंपनी में कोरम 5 मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, एजीएम स्टैंड्स फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, उसके लिए 5 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन पर्सन, ओके। और प्राइवेट में 2 मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट इन पर्सन। तो प्राइवेट कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग के लिए 2 मेंबर्स कोरम होंगे और पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में फ्रीली शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रीली, ठीक है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, ओके। सो दीज आर द key points relating to the distinction between public company and private company. Now move, what are the key differences between the private company and public company, okay. We will discuss about the key differences. The difference between public and private company can be drawn clearly on the following grounds. Number 1, public company refers to a company that is listed on a recognized stock exchange and traded publicly. Public company क्या है, to a company that is listed on recognized stock exchange and traded publicly trade करेगी. A private company, private limited company is one that is not listed on stock exchange and is held privately by the members, okay. Next, there must be at least 7 members to start public company. Public company के लिए क्या होगा, 7 members to start the public company, as against this private company can start with minimum 2 members. प्राइवेट में 2 members और पब्लिक में 7 members, okay. There is no ceiling on the maximum number of member in public company. पब्लिक कंपनी में क्या है, मैक्सिमम नंबर जो है नो लिमिट, ठीक है। और कन्वर्सली प्राइवेट कंपनी कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 200, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होना चाहिए। नेक्स्ट, ए पब्लिक कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, वेयर एज प्राइवेट कंपनी कैन हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर public company and 2 directors for minimum 2 directors for private company. Next, it is compulsory to call a statutory general meeting of member in case of public company. अभी हमने डिस्कस किया कि पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है तो वो कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, whereas there is no such compulsion in case of private company. प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, a public company, there must be at least 5 members personally present at the annual general meeting for constituting requisite of quorum. 5 members quorum रहेगा public company में. On the other hand, in case of private company, 2 member is for the quorum in private company. Next, the issue of prospectus instead of statement instead of prospectus is mandatory in case of public company. Issue of prospectus is mandatory for the public company, but this is not the case with the private company. Private company में कोई भी compulsion नहीं है for the issue of prospectus.
To start business, public company needs certificate of commencement of business after it's incorporated. ठीक है. In contrast, a private company can start its business just after receiving a certificate of incorporation. पब्लिक कंपनी में दो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और प्राइवेट कंपनी में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस. Next, the transferability of share of private company is completely restricted. Okay. On the other hand, the shareholders of public company can freely transfer their shares. And last, a public company can invite general public for the subscription of share of a company. तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, as opposed a private company has no right to invite public for subscriptions. So these are the key differences of private company and public company. Now we can conclude with this definition, with this distinctions. हम जो है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, conclusion क्या निकाल सकते हैं. After discussion these two entities, it is very clear that there are so many aspects which distinguish them. Apart from the above mentioned differences, there are many other differences, like public company can issue share warrant. Public company क्या कर सकती है, शेयर वारंट इशू कर सकती है एज अगेन इट्स फुल्ली पेड शेयर. एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि कंपनी जब शेयर वारंट इशू करेगी तो उस जो शेयर रहेगा फुल्ली पेड शेयर के अगेंस्ट में ही वो क्या करेगी, शेयर वारंट इशू करेगी. अगर पार्टली पेड शेयर है, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का अगर शेयर है, अभी तक कंपनी 80 रुपीज़ शेयर इशू की है, 80 रुपीज़ पेड है, तो 20 रिमेनिंग जो 20 रुपीज़ है कंपनी को फुल्ली पेड करने के लिए 20 रुपीज़ कॉल करना पड़ेगा. उसके बाद ही कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है. So fully paid shares to the shareholder which a private company cannot. प्राइवेट कंपनी जो है तो वो नहीं कर सकती, शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती. This scope of private limited company, the company is limited as it is limited up to a few number of people. few number of people तक वो limited रहेगी and enjoys less legal restrictions. लेकिन जो है तो legal restrictions जो रहेगी वो प्राइवेट कंपनी में वो बहुत कम रहेगी. ऑन दी अदर हैंड द स्कोप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज वास्ट. स्कोप जो है तो बहुत वास्ट है. द ओनर ऑफ द कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक. कैपिटल जो है तो वो रेज कर सकते हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड हैव टू अबाइड बाय सेवरल लीगल रिस्ट्रिक्शंस. बहुत सारे सेवरल लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन public company and private limited company and conclusion we have seen. okay. मुझे लगता है कि यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और व्हाट आर द की डिफरेंसेस ऑफ बोथ द कंपनीज. ओके, थैंक यू वेरी मच.